Hey guys, today we are going to study Law of Contract and Sale of Goods Act. Okay, so the topic for today will be Indian Contract Act 1872. Let's start with the name. See, the name is Indian Contract Act. So, a contract. First of all, let me explain what do you mean by contract. Contract, any agreement if enforceable by law will be known as contract. Yeah, now the question appears that what is agreement? So agreement is when a promisor promises to the promisee about doing anything. So it will be an agreement. See, here the definition is written. Every promise and every set of promises forming consideration for each other. Means consideration involve होता है हर promise या फिर बहुत सारे promises का एक set जो कि consideration भी involve करता है उसको agreement कहते हैं. And वो agreement जो लीगली एनफोर्सिएबल होता है. मीन्स अगर ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लॉ के पास जा सकते हैं फॉर पनिशमेंट. ओके, सो दैट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द इंट्रोडक्शन. दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was enacted in 1872 and it came into forces on 1st September 1872. 1st September 1872. So this date you have to learn. Now, Indian Contract Act includes following provisions. First, provisions relating to general principles of the law of contract and quasi contracts. Okay, means general principles आते हैं इस एक्ट में. एंड सेकेंड थिंग, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी. इनमें ये सेक्शंस में ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कवर्ड हैं. ओके, सो ये आगे आएंगे तो वी विल एक्सप्लेन देयर ओनली. Now let's come on to the application of the act. Application means where this act will apply. Okay, so section 1 covers the application of the act. Came into force on 1st September 1872. It applies to the whole of India. It applies to whole of India except the state of Jammu and कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सारे इंडिया पे ये एक्ट अप्लाई होता है. रेस्ट यू विल रीड. आई एम मार्किंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टडी ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. सो नाउ लेट्स कम ऑन टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. There are various definitions which is important to understand the Indian Contract Act. Okay, and mostly definitions comes under section 2 mostly. So here also section 2 covers all the important definitions. So let's come on to first definition, which is proposal. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Proposal means जब एक person अपनी willingness दूसरे को कुछ काम करने की या कुछ काम ना करने की, तो उसको proposal कहते हैं. Like हम जाते किसी शॉपकीपर के पास एंड हम बोले उसको कि ये चीज़ हमें 50 रुपीज़ में दे दो, तो दिस इज़ आवर प्रपोजल टुवर्ड्स हिम. नाउ सेकेंड डेफिनेशन विल बी प्रॉमिस. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted.
अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। लाइक हमने शॉपकीपर से को प्रपोज किया था कि हमें ये चीज़ 50 रुपीज़ में दे दो, तो अगर वो अपने एसेंट दिखाता है, एसेंट दिखाता है मीन्स वो हाँ कह देता है कि हाँ ठीक है 50 में ले लो, सो दैट प्रपोजल विल बिकम अ प्रॉमिस। नाउ थर्ड थिंग, ऑफरी और प्रॉमिसी। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, जो ऑफर देता है, दैट पर्सन इज नोन एज ऑफरर, एंड जिसको ऑफर दिया जाता है that will be known as promisee या ऑफरी। Now fourth definition, consideration for the promise, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Understood? Like see, देख कंसिडरेशन क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम करने के लिए ही कंसिडरेशन होता है, कुछ काम ना करने के लिए भी कभी कभी देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 शॉपकीपर्स हैं आसपास, ओके, दोनों की जो दुकान है वो वी कैन से गारमेंट शॉप है, ओके, गारमेंट शॉप है। तो एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर के पास जाता है कि तुम यहाँ से अपनी दुकान शिफ्ट कर लो, आई विल पे यू 50,000 rupees. So that will be the consideration, right? But the consideration is given to the shopkeeper. Why? To abstain him from doing this, from doing the business. Okay? So this is also consideration. And अगर हम लोग किसी से प्रॉमिस करते हैं, लाइक प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमें क्यों देगा? 50 रुपीज़ जो थे वो कंसिडरेशन था ना, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अंडरस्टूड? फिफ्थ थिंग इज अग्रीमेंट। फिफ्थ थिंग, agreement. Every promise in every set of promises forming consideration for each other. That too you have understood, right? Next, reciprocal promises. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Reciprocal promises, for example, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम मेरे लॉ के नोट्स बना दो, और उसने मुझसे बोला कि तुम मेरे अकाउंट्स के नोट्स बना दो। दिस इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। उसने मुझसे प्रॉमिस किया, मैंने भी उससे प्रॉमिस किया, राइट? सो हियर कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब कंसिडरेशन है लेकिन वो प्रॉमिस ही है। ओके, नेक्स्ट इज वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड वर्ड का मतलब ही होता है कि वो नॉट एनफोर्सिएबल है, मतलब लॉ कुछ नहीं कर सकता। अगर वो प्रॉमिस सी ने या प्रॉमिस और ने करने से मना कर दिया तो लॉ कैन नॉट डू एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सी, दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर। अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ओके, वो अग्रीमेंट जो लीगली भी एनफोर्सिएबल है इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है नहीं लेकिन हो सकता है आगे। ओके, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। ठीक है, एक पार्टी या दूसरी पार्टी के कहने पर या उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, इसका भी अभी एग्जाम्पल आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट वॉज वॉइड अग्रीमेंट, हियर इट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, फिर तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा ना। अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और वो लॉ एनफोर्स नहीं करता है तो वो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। यस, नाउ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सी, ये जो एक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ होता है वो ये कहता है कि जब अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में,
ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेंगे, मतलब पूरा नहीं करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, सो वो पनिशेबल होंगे। ओके, हियर मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H, सी 1 minute. Section 2H of the Indian Contract Act 1872 defines a contract as an agreement enforceable by law. Okay, a contract is an exchange of promises. It is formed by two or more persons, initiated by one party by offering something to the other party. If the other party accepts the offer in full, then it becomes an agreement. Okay, like पहले जो वन पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को ऑफ़र करती है, ठीक है। फिर अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, मीन्स एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, तो फिर क्या हो जाता है, एक अग्रीमेंट हो जाता है। ओके, एंड अगर ये जो अग्रीमेंट है वो फुलफ़िल कर लेता है कंडीशंस को सेक्शन 10 की, अभी आएगा सेक्शन 10 भी, ठीक है, वी विल स्टडी इट लेटर। सो सेक्शन 8 की अगर कंडीशंस को वो अग्रीमेंट फुलफ़िल कर देता है तो क्या कहलाता है वो, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दैट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यस, नाउ various people has given their definitions also, so you can read that. Okay, and let's come on to the definitions here. देखो, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट। Contract essentially consists of two elements. कितने? Two elements. First one is agreement. Second one is enforceability by law. ओके, दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ, बट लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन, मतलब इन अ टाइप ऑफ अ समरी, एज अ टाइप ऑफ अ समरी. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अग्रीमेंट. सो अग्रीमेंट, you know, learn the definition of agreement in contract by heart. Every promise and every set of promises forming consideration for each other. Okay, see, by the help of this diagram, have a look here. This is a very nice presentation given by this book, and see, contract is equals to agreement plus enforceability by law. Means कोई भी agreement अगर enforceable हो जाता है तो that will be known as contract. Okay, see, this circle is agreement, this circle is enforceability. If the area where they both are present, that area will be known as contract. Okay, the combination of agreement and enforceability by law will make a contract. Understood? And agreement का combination, this is the new thing for you, so have a look here as well. Agreement is equals to offer plus acceptance. Agreement क्या होता है? Agreement कब बनता है? जब कोई offer देता है और जो सामने वाला बंदा है जिसको ऑफ़र दिया जा रहा है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा, तो दैट विल बी नोन एज अग्रीमेंट. ओके जी, सो रीड इट वंस. हियर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं to make a contract a valid contract. Okay,
सी हियर, फर्स्ट थिंग इज अग्रीमेंट. मैंने अभी आपको ऊपर ही देखा था, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. व्हाट इज़ दैट? एक तो था लीगल एनफोर्सिबिलिटी एंड सेकेंड थिंग इज अग्रीमेंट. सो अग्रीमेंट इज देयर, अग्रीमेंट होना चाहिए. Okay, to constitute a contract there must be an agreement. For an agreement there must be a lawful offer and a lawful acceptance. Offer और acceptance दोनों होनी चाहिए. फिर lawful consideration होना चाहिए, consideration होना चाहिए. See the example of this: intention to create. Oh, I'm so sorry. Next is lawful consideration. An agreement is legally enforceable only when each of the parties to it gives something and gets something. जब एक पार्टी कुछ देती है और कुछ उसको मिलता भी है. लाइक ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर 100. बी promises to pay 100 is the consideration for A's promise to sell his books. Okay, A's promise to sell the book, B's promise to pay 100. Okay, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, जो ए था वो अपनी बुक बी को बेच रहा है. ठीक है. सो ए के लिए कंसिडरेशन है कि उसको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं. ओके, बट बी के लिए कंसिडरेशन है उसको बुक मिल रही है. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट. कंसेंट जो है वो फ्री है और जेन्युइन है. देखो इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ. सी, फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट इज अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कंसेंट मीन्स क्या होता है? पार्टीज मस्ट हैव अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. दोनों पार्टी अग्री होनी चाहिए. ठीक है. बट फ्री कंसेंट तब नहीं होता है. कब नहीं होता है? इन 5 केसेस पे नहीं होता है. ये 5 केसेस आपके आगे आएंगे. ओके, सो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. कोअर्शन मीन्स जब किसी को डरा धमका के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं. ठीक है. उसके माइंड पे बंदूक रखी हुई है एंड बोला हुआ है कि यहाँ साइन करो. ओके, सो दैट विल बी नोन एज कोअर्शन. नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स लाइक कभी कभी होता है कि हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ काम कराते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं. तो दिस इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके, किसी को इन्फ्लुएंस करना इमोशनली, फिजिकली तो कोर्शन में आ गया, राइट. इमोशनली, मेंटली, लाइक दैट. फ्रॉड. फ्रॉड मतलब कि हमें पता है, मतलब फ्रॉड करना किसी के साथ, मतलब यू कैन मीन इट, राइट. नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स हमको पता था कि ये गलत है लेकिन हमने उसको नहीं बताया. दैट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन. एंड मिस्टेक मीन्स हमको भी नहीं पता था कि ये गलत है, बट अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट. बट हमको नहीं पता था, बट फिर भी हम लोग गिल्टी होंगे. लाइक ए थ्रेटन टू शूट बी इफ़ ही does not lend his 2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion, hence voidable at the option of B. For example, coercion है तो अगर A जो है वो B से साइन करवा रहा है. ठीक है. B साइन करवा रहा है कि मुझे अपना घर बेच दो. उन डॉक्यूमेंट्स पे वो कोर्शन करके मीन्स उसको उसके रिवॉल्वर रख रहा है उसके सिर पे और उससे साइन करवा रहा है. दैट इज़ कोर्शन, राइट. तो ए जब तक वो पेपर्स को रजिस्टर करवाएगा रजिस्ट्रार के पास, उससे पहले अगर बी वहाँ पर चला गया और उसने बता दिया कि ये कोर्शन के थ्रू हुआ था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल है ना. तब वो वॉइड बन जाएगा अगर बी ए से पहले वहाँ पहुँच गया. ओके. नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग. agreement be understood intention to create legal relation. ठीक है. among the parties that agreement should be attached by legal and create legal obligations. वही दो conditions थी, agreement और legal enforceability. so दोनों चीज़ आ गई. lawful consideration हो गया, consideration होना चाहिए. now capacity of parties. पार्टी जो है, जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, प्रोमिसोर और प्रोमिसी,
दोनों कंपीटेंट होनी चाहिए। और कंपीटेंट कब होती हैं? 3 केसेस होते हैं जब वो कंपीटेंट होती हैं। पहली चीज़ तो मेजर होनी चाहिए, मतलब माइनर नहीं होनी चाहिए। ओके। सेकंड थिंग, साउंड माइंड होनी चाहिए, मतलब पागल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साउंड माइंड, बिल्कुल ठीक। ओके। डिसक्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए बाय लॉ। ओके। इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं आप कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और कोई भी पर्सन जो डिसक्वालीफाई है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है किसी के साथ। ओके। नेक्स्ट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्टिव से हम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, वो लॉफुल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए उस चीज़ का। नेक्स्ट, सर्टेनिटी, कि अग्रीमेंट्स द मीनिंग विच इज़ नॉट सर्टेन, सर्टेन हो वो, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं कि हमें स्टार्स प्लग करके लाने हैं किसी के लिए। ओके, सो दैट इज़ नॉट सर्टेन। ओके, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग so there is no certainty. Okay. Next, possibility of performance or doctrine of frustration. An agreement to do an act impossible in itself is void. वो void हो जाता है अगर उसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। ओके। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड void और लॉफुल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जो है वो void डिक्लेयर नहीं हुआ है। Okay, like agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings are void agreements. Those agreements prohibited by Indian Penal Code, threat to commit murder, or agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. Means कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि ये इलीगल है। अगर कोई भी लॉ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट void ही कहलाएगा। Types of contracts we will study in my next video. So stay tuned and thank you.